السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا جناح علیکم ان طلقتم ان طلقتم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم اس کو اب وقت کو اویل کرتے ہیں، تو کل پھر اس پہ آپ مشورہ کر لیجئے گا۔ جی انشاءاللہ۔ آج جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کا ہم موضوع اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا رہا ہے کہ عورتیں کو جب مرد طلاق دیتا ہے یا عورت خود خلا لیتی ہے تو اس کے جو چیزیں بتائی ہیں یا آگے آ رہی ہیں وہ مطلب 4 چیزیں ہیں، اور خلا کو بھی اس کے درمیان رکھ لیں گے تو یہ علیحدگی کی 5 صورتیں ہیں ہمارے پاس۔ جی جی اچھا، آئیڈیل جو صورت ہے وہ جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ جی ذرا دیکھیے گا اور اس کو غور سے سننا ہے کہ مرد اور عورت پورا سوچ سمجھ کے نکاح کریں اور دیکھیں کہ لڑکے کو لڑکی کے عادات اطوار معاشرت وہ پسند ہے یا نہیں ہے۔ لڑکی کا بھی یہی حق ہے کہ وہ پوری اپنی اس آزادی کو استعمال کرے۔ پہلی تو چیز یہ ہوگی، اور پہلے نکاح کے اندر جو ولی الامر کا ہونا ہے وہ لازمی ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہے اس کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بھی اپنا وارث جو ہے یا اس کا ولی الامر وہ نہ رہے، وہ پھر اضطراری حالت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ زندگی گزارنے کا ایک بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب اس کے بعد جو طلاق کا سلسلہ آیا ہے، اب اس کے اندر سیپریشن کے اور جو لوگوں نے دینا ہے اس کی 5 صورتیں ہیں خلا کے ساتھ ملا کے، اور خلا کو چھوڑ دیتے ہیں تو 4۔ اب 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، مطلب ہے کہ سب کے اندر نکاح ہو گیا، ان 4 صورتوں کے اندر کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا۔ اب باقی 2 چیزیں ہیں کہ ایک مہر کا مقرر کرنا اور ایک ازدواجی زندگی کی ابتدا، جس کو ہم رخصتی کہیں گے۔ جس کو ہم کیا کہیں گے؟ رخصتی۔ رخصتی مطلب ہے جو تمدنی لفظ ہے یا شرم و حیا والا، جی تو اس کو ہم رخصتی کہہ لیتے ہیں۔ تو ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے اور رخصتی بھی ہو گئی اور حق مہر بھی مقرر ہو گیا، اس کے اندر اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ بتائیے کیا کرے گا؟ تو وہ اس کو جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس کو یا تو اس کو روک لے گا یا اس کو رخصت کر دے گا بھلے طریقے سے۔ نہیں، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی جی وہ ٹھیک ہے کہ پہلی طلاق ہوئی رجی، دوسری طلاق ہوئی رجی، تیسری طلاق بائن ہو گئی، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کچھ اس کو دیا ہے اس میں سے واپس نہیں لے سکتا، اور جو اس کے ساتھ یہ معاہدہ بس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر نکاح حق مہر مقرر ہے، ازدواجی زندگی شروع ہو گئی ہے اور طلاق بائن ہو گئی، تو اس کے بعد خامند اس سے کوئی چیز نہیں لے گا، جی واپس نہیں لے گا، خواہ اس نے کوئی تحفے تحائف دیے ہوئے یا حق مہر دیا ہوا ہے، وہ شیء آتا ہے۔ پہلی چیز ہو گئی۔ جی اب دوسری دیکھتے ہیں، دوسری ابھی آج ہم نے پڑھنی ہے کہ نکاح بھی ہو گیا، حق مہر بھی مقرر ہو گیا،
लेकिन रुखसती नहीं हुई। जी, क्या मैंने कहा, जरा सारे साथी कहें। निकाह भी हो गया, लेकिन हक महर भी हो गया और और रुखसती नहीं हुई। लेकिन रुखसती नहीं हुई। रुखसती नहीं हुई। और अगर कहते हैं तो मैं इसको कहते हैं कि भाई उनका मस करना या अब मिलाप जो है अज़दवाजी वो नहीं हुआ। तो इसके अंदर आज हक़ ज़ौजियत, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो खामद है जिसने तलाक दी है, एक्स खामद, वो आधा हक महर देगा उसको। कितना देगा? आधा आधा। हक महर। आधा हक महर देगा। अच्छा, अब तीसरी चीज मुमकिन है आपको अजीब लगे, लेकिन ये है कि जहाँ कुर्बत होती है, रिश्ते हो जाते हैं, वहां ये कहते हैं कि चलो भाई हम हक महर बाद में मुकर्रर कर लेंगे। अपने घर का ही मसला है ना, क्यों जी? जी, कई दफा ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है, जो कि उसूली तौर पर कोशिश ये करें कि ना हो, अगर हो जाता है कि निकाह हो गया और वो खटाई के अंदर ही पड़ा रहा कि भाई हक महर कितना हो और रुखसती भी हो गई। अब यहाँ आपको अजीब लगेगा कि हक महर के अलावा रुखसती, जी, जी जी, ये अजीब लग रहा है, लेकिन यह है कि अगर होता है तो तलाक हो जाती है, उसके बाद हक महर का पता नहीं, तो अब हक महर तो वापस करना है। इसलिए जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो हो गए, तो हक महर ही अब क्या करेंगे? इसके लिए कहते हैं कि जो महरे मिसल इसको कहते हैं, कि देखेंगे कि उस बच्ची के जो अपने घर में कोई बहन है या उसकी फूफी की बहन है या उसकी करीबी कोई बहन है, उसका कितना हक महर मुकर्रर हुआ था, तो वो दस्तूर के मुताबिक मारूफ तरीके से देखेंगे और वो हम हक महर मिसल देंगे। यहाँ आपके ज़हन में काफी सारे सवाल आएंगे कि मुमकिन है दूसरी जगह पे उसका हक महर करोड़ों में हो, फिर क्या करेंगे? जी, जी, वो एक्सेप्शनल चीजें हैं। आपने उसमें देखना है कि एक मतवाजन चीज जो है वो क्या है। दो का पता कर लेंगे कि एक का ज्यादा है दूसरी का कम है, तो दरमियान में जो उनके यहाँ मुरवजा तरीका है, खानदानों के अंदर ये होता है, तो वो हक महर आप उसको कहते हैं महर मिसल, वो दे देंगे। जी। ये मैंने क्या कहा कैसर भाई, जरा दोबारा दोहराइएगा। महर मिसल, महरे महरे नहीं, मैंने मिसल कि नहीं, जो महर मिसल तो हुआ, लेकिन किन हालत में? क्या महर अब मुकर्रर नहीं हुआ, बस महर मुकर्रर नहीं हुआ। कि अगर महर बस इतना मुकर्रर याद नहीं रखो। हुआ, बिल्कुल ठीक है। बाकी सारा कुछ प्रोसेस हुई, मैं दरमियान में इल्तवा में पड़ गया, तो उसमें के अंदर क्या होगा? महरे मिसल मिसल हो गया। अच्छा, चौथी चीज जो आ सकती है वो ये है कि निकाह कर लिया छोटे होते हुए, अमूमी तौर पर होता है कि बच्चों का निकाह कर देते थे। अब तो कानून बन गया, अभी 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का, कानून बन गया, ऐसा है जी, ना? जी, लेकिन इस्लाम के अंदर अगर मतलब जैसा कर लेते हैं, निकाह कर लिया और सिर्फ निकाह ही कर लिया, हक महर भी नहीं हुआ और अज़वाजी जिंदगी भी नहीं हुई, जी, तो सिर्फ निकाह, इसका जिक्र आएगा अभी। वहां क्या करेंगे? वहां थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, वो जो हदीस के अंदर आता है, वो जो सुहाबी ने दिया वो एक जोड़ा दिया और एक ने 400 दिरहम तक भी दिए। ये जी, 4 हमारी चीजें आपके सामने आ गई। इसको ध्यान में रखते हुए बाकी खुला रह जाता है, तो खुला का तलाक नहीं होती, खुला औरत लेती है और उसका यह है कि वो अपने हक महर में से जितना भी मुआफ करना चाहती है या पूरा मुआफ करना चाहती है, जो कुछ भी है वो आप पढ़ चुके हैं। आप इसको लेके चलें, अब आप ध्यान में रख के ये चीजें। जी, इंशाल्लाह सर। अच्छा जी,
اب لفظ آپ کے پاس آ رہے ہیں ازدواجی زندگی کے لیے مس کا لفظ آ رہا ہے، رخصتی کے لیے تمسو ہننا کا لفظ آ رہا ہے، مس کرنا. جی اور اس لفظ پہ باقاعدہ فقہ الگ الگ ہے. جا کے پوچھیں گے تو آپ ممکن ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ اختلاف ہو. میں آپ کو عمومی بات بتا رہا ہوں کہ جو سمجھ ہماری کے اندر آتی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد. باقی فقہ جو ہے وہ الگ ہے کہ جہاں جہاں کرنا ہے. میں یہ انشاءاللہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ جو ابھی باتیں بتائیں کی ہیں اس کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا. باقی فقہ بہرحال گہری جاتی ہے، تو انہوں نے لفظ مس کو کہا کہ بھی اس نے ہاتھ لگایا تب بھی ٹھیک ہے، اور ایک مس کو یہ لیتے ہیں کہ بھی ازدواجی زندگی باقاعدہ، ایک یہ لیتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اسی جگہ پر جہاں جس جگہ پہ نکاح ہوا ہے اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی مس کر لیں، تو یہاں تک بھی آپ کو پرابلم ملیں گے. وہ فقہا کے ہیں، وہ ہمارا مطلب جو یہاں کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں سر، یہاں کا نہیں مسئلہ ہے، یہاں پہ وہ ہم نہیں ہے، یہاں کا مسئلہ ہے ترجمہ. جی تو آئیے ذہن میں کرتے ہیں، اور اس کے اندر آ رہا ہے یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں لا جناح علیکم پڑھ چکے ہیں ہم، ان طلقتم النساء بھی پڑھ چکے ہیں، جی ما لم تمسوہن یہ نیا لفظ ہے، او تفردو لہن فریضہ، تفردو مقرر کرنا، فریضہ جو اللہ تعالی کی طرف سے فرض کیا گیا ہے جس کو ہم حق مہر کہتے ہیں، یہاں اس کے لیے لفظ آ گیا فریضہ. ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے سر. جی آگے جی. اب امر ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، یہ لفظ ہے وَمَتِّعُوهُنَّ. اب امر کا صیغہ ہے، زیادہ کے لیے ہے، جمع کے لیے. اس کے اندر فائدہ سامان کی صورت میں، مال و متاع جیسے ہم کہتے ہیں، یہاں وہ مراد لیں گے وَمَتِّعُوهُنَّ. اب اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے آپ. موسعی اس میں فاعل ہے، وسعت والا، علی الموسع وسعت والا، قدرہ، وسعت والے پر قدرہ اس کی قدر. قدر کیا ہے؟ طاقت ہے، مالی، جی جی اس کے مطابق ہے. وعلی المقتر، یہ الٹ ہے موسعی کا، تنگ دست، تنگ دست، جی تنگ دست، قدرہ، جی. تو وعلی الموسع علی المقتر قدرہ، بلکہ قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. یہ ہے جی آیت. آئیے پڑھتے ہیں. تو لا جناح علیکم کا مطلب آپ کیا کریں گے؟ تم پر کچھ گناہ نہیں، گناہ تم پر کوئی گناہ نہیں. ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو طلاق دو، کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما ان کو، لم تمسوہن، ما لم تمسوہن، جی تم نے ان عورتوں کو چھوا نہ ہو، جن کو تم نے چھوا نہیں. اب چھونا جو ہے یہ اخلاقی لفظ مطلب ہے، شرم و حیا والا لفظ ہے، اور اس سے مراد ازدواجی زندگی ہے. تو معلوم تمسوہن ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ تم ان کو نہیں چھوا، تم نے ان کو نہیں چھوا، نہیں چھوا. ایک شرط. دوسری شرط وَتَفْرِدُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وہ لا والا ہی ہے، لم تمسوہن او تفردوا لہن.
तो तफरीदू लहुन्ना का मतलब मैंने अभी बताया, उनके लिए और मुकर्रर मुकर्रर नहीं किया, मुकर्रर किया वो मुकर्रर नहीं किया फरीदा हक में हक महर। हक महर। अब यहाँ तक एक हमारा जुमला हो गया। तो मुश्ताक मुगल साहब जी। जरा जल्दी जल्दी करेंगे इसलिए कि थोड़ा ज्यादा कर लें। मैं पढ़ता हूँ, ला आप तर्जमा करेंगे। ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, इन तल्लक़्तुमुन निसा, कि तुम औरतों को तलाक दे दो। तुम अगर अब तुम ऐसी कर लें, तुम ऐसी औरतों को तलाक दे दो, माँ आप कर ले जिन्हें, तुम ऐसी मालम औरतों को तलाक, तमस्सुहुन्ना, जिनको तुमने छुआ नहीं, माँ जिनको तुमने छुआ नहीं, औ तफरीदू लहुन्ना या फरीदा, इनके लिए हक महर मुकर्रर नहीं किया, या इनके लिए कोई हक महर मुकर्रर नहीं किया। कोई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलिफ लाम नहीं है। फरीदतन या फरीदा ये क्या है, नकरा है, तो इसमें हम नकरा कोई है। इसके साथ या कोई भी हक महर उनके लिए मुकर्रर नहीं किया। नहीं किया। अब हुक्म क्या है? हुक्म इसके लिए यह है, खामद के लिए, फमत्तिऊहुन्ना, उनको कुछ फायदा जी, पहुंचाओ। वमत्तिऊहुन्ना तर्जमा करें, कुछ फायदा दो और उनको कुछ फायदा दो। और उनको कुछ फायदा दो। दूसरा मैंने क्या बताया, उनको कुछ सामान दो। मानो फायदा ही जी, जी, सामान पैसा भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, और भी कोई चीज हो सकती है। और ये गिफ्ट जितना दे भी देगा। वमत्तिऊहुन्ना आएगा, ये ज़हन में रखना है कि ये हक महर के अलावा होगा। ये कर्टिसी है खामद की तरफ से, वो जो अलैहिम दरजा अलैहिन्ना दरजा जो है कि उनको एक दर्जा अलग है, या वो उलुल अमर घर के अंदर मतलब है, तो वमत्तिऊहुन्ना वो अपना फिर दिखाएंगे। तो हो गया इसका किस चीज पर इत्तेफाक हमने किया जी? उनको कुछ सामान सामान दो। सामान दे दो। अलल अला पहले भी पढ़ चुके हैं हम, फर्ज अलल है, उन पर फर्ज है। ये फर्ज हमने किया था। तो अलल मूसिई कदरुहु, वुसअत वाले पर उसकी कुदरत के मुताबिक फर्ज है। अब कादरा की लफ्ज क्या कर रहे हैं, कुदरत। कुदरत। अगर आपने ताकत करना है तो ताकत कर लें, ताकत कर लें, ज्यादा वसीयत बेहतर नहीं है। कर सकते। ताकत ठीक है, ताकत बस ठीक है। तो ठीक है जी, बिल्कुल मुवाफिक। प्रोफेसर साहब का भी मशवरा ले लें। जी ठीक है। ठीक है जी। अलल मूसिई कदरुहु, प्रोफेसर साहब ही करेंगे। अलल मूसिई कदरुहु, वुसअत वाले पर उसकी कुदरत के मुताबिक। हाँ जी, अब हमने उसको उसकी ताकत पर किया ना, हमने उसकी ताकत के मुताबिक जी फर्ज है। फर्ज है। अलल मुक्तिरी, ये उसका उलट है, मुक्तिरी कदरुहु जी। और तंग दस्त पर उसकी कुदरत के मुताबिक। और मुफलस मुफलस की बजाय तंग दस्त करें तंग दस्त ये ज्यादा करीब है उसके ना, मुक्तरे के। जी। मतलब मुफलस तो बिल्कुल उससे और नीचे आएगा ना, वरना मुफलस की भी शादी तो वैसे होती है, वो अपने मुताबिक देगा। वालल मुक्तिरी, और तंग दस्त पर कदरुह उसकी ताकत के मुताबिक फर्ज है। ताकत के मुताबिक फर्ज है। मताअन, मताअम इकलाब है, ऐन के ऊपर जबर है, आगे बे आ गई है, मीम आया हुआ है। मताअन वही लफ्ज, बिल मारूफ, वही मत्तेऊ से मताअन, अब उसका फायदा नाउन आ गया है। मताअन फायदा पहुंचाना है, सामान देना है, सामान देना है, सामान देना है। दस्तूर बिल के मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। दस्तूर के मुताबिक। ठीक है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि जहां भलाई आएगा वहां मारूफ का भलाई करेंगे हम। जहां दस्तूर आ सकता है उसको प्रेफरेंस देंगे। कई जगह पे दस्तूर के साथ माना वाजे नहीं होगा,
जी 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 हाँ, कहीं भलाई के मुताबिक आएगा तो दस्तूर के मुताबिक फायदा सामान देना है। सामान देना है। हाँ जी, फायदा पहुंचाना है। हम इनको दोनों को कर लेते हैं, इसको ओपन रख लेते हैं ना कि फायदा देना है। कल आपने कोई गलती निकालनी है तो अगर कोई फायदा पहुंचाना है उसको भी कर लेंगे, और मता का मतलब सामान भी कर लेंगे, इसलिए कि दोनों मानी हैं। मतान असल अच्छा। में हमने चूंकि पीछे पढ़ा भी हुआ है ना, वो मतान इलाहीन। हाँ जी, वो फायदा वहां पड़ा था, लेकिन इस जगह पे चूंकि एक सामान की सूरत में है फायदा, तो मैंने जगह जिस जगह पे भी सारा आज किया है तो वो सामान की सूरत में ही आ रहा था। अच्छा जी, अब ये आगे आ गया है, एक होता है हक और एक होता है फर्ज, लेकिन यहाँ लफ्ज आया है हक्कन आला। हक भी है और आला भी है लाजमी होगा। जी, हक्कन। अब इसका हक है, तर्जमा लाजिम है। लाजिम है। ये हक लाजिम है नेकी करने वालों के लिए। अलल मुहसिनीन। नेकी करने वालों नेकोकारों के के लिए। अच्छा, इसका मैं कहूंगा कि नेकी करने वाले भी है और एहसान करने वालों पर भी है जी। जी जी, मुहसिन तो मेरी तजवीज ये एहसान होगी के कि फाइल है। जी, मेरी तजवीज ये होगी कि हम इस जगह पर एहसान करने वालों पर करें, इसलिए कि ये है एहसान बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। जी। जी तो सर। हक्कन अलल मुहसिनीन क्या तर्जमा करेंगे? ये हक ये हक लाजिम है एहसान एहसान करने वालों पर। ये हक लाजिम है एहसान करने वालों पर। अब हक किसका है? औरत का हक है। औरत का। हक का। और अलल मुहसिनीन पर है। तो वैसे इसका तर्जमा जो लिखा हुआ होगा वो सिर्फ इतना ही है कि ये एहसान करने वालों पर लाजिम है। आगे जी चले जी, यहाँ तक हो गया। जी सर। जी अच्छा, अब ये तो सूरत आ गई कि आपने ना मस किया और ना हक महर रखा जी। जी तो जी इसका मैंने बताया कि एक जोड़े से लेकर 400 दिरहम तक सहाबा इकराम ने दिया हुआ है इसकी अपना इत्तिबा के अंदर, रसूल पाक अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत में। अब आगे क्या आ रहा है? अब ये है कि जो हक महर वो मुकर्रर हो गया, सॉरी वो हाँ, हक महर मुकर्रर हो गया, लेकिन रुखसती नहीं हुई। अज़वाजी ताल्लुकात हक़ ज़ौजियत नहीं पूरा हुआ, उसको देखते हैं तो फिर उसका है आधा। अब अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहा है? फ़इन तल्लक़्तुमूहुन्ना। और अगर जी, तुम तर्जुमा करें, फ़इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, अगर तुम और अगर तुमने और उनको अगर तलाक दे दी। तुमने तलाक दे दो। अगर तुम उनको तलाक दे दो, मेरे साथ कह लें फिर, अगर तुम उनको तलाक दे दो। दे दो। तल्लक़्तुमू है ना जी, तल्लक़्तुमूहुन्ना अलग है। अगर तुम उनको तलाक दे दो मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना जी, इससे पहले इससे कि पहले कि तुम तुमने उनको मसो। तुमने उनको छुआ इससे पहले कि तुम उनको छू लो। छुओ। मास करो। तुम उनको छुओ कहेंगे, अभी हम उसी अपना हिजाब को रखेंगे जी। इससे पहले कि तुम उनको छुओ, वक़द फर्रतुम का मतलब क्या है? तुमने, बेशक तुमने मुकर्रर कर दिया बेशक तुमने मुकर्रर कर दिया लहुन्ना उनके लिए फरीदा या फरीदतन अभी पढ़ते हैं जी, हक महर। महर हक में हक महर यहाँ आ गया। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको, फ़इन तल्लक़्तुमूहुन्ना व अगर इन तुम उनको तलक तलाक दे दो। वैन फ़इन तलाक नहीं है, अगर तल्लक़्तुमूहुन्ना, अगर तुम अगर उनको तलाक इन दे औरतों दो को तलाक दे दो। तो दे दो मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना,
اس سے پہلے اس سے کہ پہلے تم ان کو چھو तुमने उनको छुआ हो اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو وقد فرضتم لہن فریضہ اور بے اب شک تم قد نے کو درمیان میں سے نکال دیں اور اور تم تم نے مہر ان کے مقرر لیے کر چکے حق مہر مقرر کر دیا ہو मुकर्रर कर दिया کر دیا ہو ہو مقرر کر دیا ہو جی اب کیا کرو گے طلاق ہو فنصف گئی ما کرو۔ حق مہر مقرر ہو گیا مس نہیں ہوا فنصف ما فرضتم یہاں تک حکم ہو گیا جی فنصف نصف کا مطلب کیا ہے آدھا 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 ہے ما اس چیز کا जो فرضتم جو 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 تم تم نے نے مقرر طے کیا کیا ہے मुकर्रर किया جو تم نے مقرر کیا ہے بالکل ٹھیک ہے اور آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے آپ بریکٹ میں لکھ لیں حق مہر اور آدھا ہے اس حق مہر کا جو تم نے مقرر کیا ہے مقرر کیا ہے تو ہم بریکٹ میں حق مہر اپنے پاس سے لگا رہے ہیں کہ کل کوئی درمیان میں سوال آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے اچھا یہ ہے کہ میرا نمبر آپ کے پاس ہے مجھ سے پوچھیں میں بالکل خوشی سے اس کا جواب دوں گا لیکن ابھی اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں مجھے تو آ گئی ہے سر سمجھ صحیح اچھا اور باقی سر آپ کو ٹھیک ہے سر सबको आ गई اچھا اب مزے کی چیز یہاں کیا ہے یہاں ابھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نصف تمہارے اوپر فرض ہے واپس دینا اللہ مگر हुआ है مگر ان یا فونا یہ اصل میں تھا یا فنا اور وہ یافو واو آ گئی یا فونا عورتوں کے لیے ہے نون نسوہ ہے वो औरतें جی माफ تو कर کیا दें। ہوگا مگر یہ کہ عورتیں معاف وہ کر دیں عورتیں औरतें معاف کر دیں عورتیں معاف ساتھ کر لگا لیں مگر یہ کہ مگر عورتیں یہ معاف کر دیں کہ آدھا میں نہیں معاف لیتی نہیں لیتی او یعفو جی یا معاف یا کر وہ دے معاف کرے معاف या کر मर्द या माफ माफ कर दे الذی وہ شخص سنے ذرا وہ شخص آرام سے یا معاف کر دے والذی وہ شخص بیادی ہی جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ نکاح کی گرا گرہ गिरा یا عقد نکاح وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے وہ ولی ہوگا اس کا نہ 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 خاوند عقد خاوند نکاح یاد رکھ لیں یہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے نہیں تو وہ کیسے معاف کر سکتا ہے وہ خود وہ کو کرے معاف گا نا وہ کرے گا یہ کہ میں پورا دے دیتا ہوں और भी اچھا माफ ٹھیک ہے سمجھ گیا سر جی یعنی جی جو جی اس کے پاس اختیار ہے وہ چھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھ چھوڑ گیا رہا ہے صحیح جی سمجھ گیا میں کہتا ہوں اتنی خوبصورت اسلام ہے آپ کا کہ میں تو یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ ابھی اس نے مس بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو یہ بتائی ہے عورت کے پاس وہ اس کی الحمدللہ یہی چیز ہے جو مطلب ما لم تمسوہن من قبل ان تمسوہن جی عفت جس کو کہتے ہیں جی اگر عفت کو کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ کہا کہ نصف لے لو اور ساتھ یہ بھی کہا الا ان یعفونا مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں اور دوسری طرف اس بندے کو کہا ہے کہ تمہارا تو نصف بنتا ہے اور تم نے پورا کیا ہوا ہے اس کو او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں آپ کیا کریں گے اس کا ترجمہ عقدہ نکاح ہے عقدہ نکاح ہے نکاح کی گرہ ہے یا عقد نکاح کی بجائے میں یہاں یہ ویسے کہوں گا کہ نکاح کی گرہ ہی کریں ٹھیک ہے سر اس لیے کہ میں نے اس کا ترجمہ کسی اور جگہ پہ عقد پڑھا نہیں وہاں تو فٹ ہو جاتا ہے یہاں نکاح کی گرہ ہی پڑھا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا ذرا آپ ترجمہ کریں گے اس کا اطہر بھائی آ گئے اطہر بھائی جی آ گئے سر جی سر جی ذرا جی سر جلدی کر دیجیے 10 منٹ ہے سر ہمارے پاس
वक़द जी फरज़तुम सर हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं बस। जी ठीक है, हम इंशाल्लाह अगली जी 2 आयत पढ़ेंगे जी। वक़द फरज़तुम नहीं वाइन तल्लक़्तुमूहुन्ना, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तुम उनको तलाक दे दो, मिन क़ब्लि अन तमस्सुहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उनको छुआ हो, वक़द फरज़तुम लहुन्ना और फरीदा, लहुन्ना फरीदा, और यकीनन और तो मेहर मुकर्रर और तुमने उनके लिए हक महर आपने मुकर्रर कर दिया हो, करे और तुमने उनके लिए हक महर मुकर्रर कर दिया हो, फनिस्फी, जी, तो आधा देना है, फनिस्फु मा फरदतुम, फनिस्फु मा फरज़तुम, तो आधा देना है जो तुमने हक महर मुकर्रर किया हो। वेरी गुड जी। उस चीज इल्ला इल्ला अन याफूना, मगर ये कि वो औरतें माफ कर दें, औ याफुआ औ याफु बल्लज़ी, औ याफुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। अच्छा वो की बजाय वो शख्स जी, अल्लज़ी, हाँ जी, वो शख्स मार, बल्कि वो मर्द भी इसका हो सकता है, लेकिन यह है कि ज्यादा गहराई में नहीं जाते। अब अल्लाह ताला और क्या कह रहा है, मशवरा अल्लाह दे रहा है। वअन ताफू, दोनों को कह रहा है, औरत को भी मर्द को भी। वअन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम माफ कर दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। इसलिए कई इफ़्फ़त तो गई नहीं जी जी जी, तो करें वअन ताफू, अगर तुम माफ कर दो तो अक़रबु लित्तक़वा, ज्यादा करीब, तो ये तकवा के और ज्यादा दोनों ही मुआफ कर दें, दोनों ही मुआफ कर दें कि भाई वो कहे कि मैं तो देता हूँ, और वो कहे ये तकवे का सवाब फिर ये नहीं है कि उसके बाद अमल होना है कि नहीं होना। आप कहें कि भाई मैंने मुआफ कर दिया, और वो भी कहे मैंने मुआफ कर दिया। अब दरमियान में होंगे लोग, वो कहीं ना कहीं उसका कर लेंगे, लेकिन आपने मुआफ करने का सवाब तो ले लिया जी जी। जी अच्छा जी, तकवा फिर अल्लाह ताला कह रहा है, मैं कहता हूं कि हर इबादत के अंदर तकवा 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 आ रहा है। अब अल्लाह ताला बड़ी अहम बात कर रहा है, वला तनसवुल फदला बैनकुम। अच्छा, वतनसूना अनफुसकुम आपने पढ़ा हुआ था पहले पारे में, और तुम तुम खुद ततलून अल किताबा वतनसौना अनफुसकुम, वो क्या पढ़ा था? और तुम भूल जाते हो तिलावत अपने, करते हो और तुम खुद को भूल जाते हो, भूल जाते हो। तो यहाँ लेकर वला तनसवुल फदला, और बैनकुम क्या मतलब होगा इसका? अपने दरमियान, तुम अपने दरमियान फजल को मत भूलना। फजल को मत जी। भूलो। अब फजल के बहुत बड़े मानी हैं फजल के जी। फजल का मतलब ये है, असल में जो बड़ा, आज मैं डिक्शनरी खोल के बैठा हुआ था, तो फजल का मतलब ये है कि जो किसी का हक नहीं बनता वो भी उसको दे देना। ये फजल के मानी अपना डिक्शनरी ने मुझे बताए हैं जी। लेकिन जी। यहाँ हम कह रहे हैं आपस में मेहरबानी। तो फजल के मानी क्या कर रहे हैं? मेहरबानी आपस की करना। मेहरबानी, आपस की जी? मेहरबानी जी, आपस की मेहरबानी। आपस की है बैना, आपस अपने दरमियान, आपस में और अपने मेहरबानी। दरमियान जी मेहरबानी को मत भूलो। मत भूलो। मत भूलो। दोबारा कहते हैं, वला तनसबुल फदला बैनकुम का तर्जुमा करें, और अपने दरमियान मेहरबानी को मत भूलो। मेहरबानी को ना भूलो। मत भूलो। अगला तर्जुमा आपने खुद करना है, इन्नल्लाह बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ताला बिमा, उस चीज उस चीज को तामलूना, जो तुम अमल करते हो, तुम अमल करते हो। वहां था खबीर, यहाँ है बसीर, बसारत, देखने वाला है, देखने वाला है, खूब देखने वाला है। हो गया जी ये? जी हो अच्छा गया। जरा जल्दी जल्दी ऊपर करें, मैं आपको
आपको एक अहम चीज बताने वाला हूँ, 5 मिनट मेरे ख्याल रहते हैं जी। जी अच्छा जी, दरमियान में अल्लाह ताला ऐसे है कि जैसे हम नमाज पढ़ के आए हैं और आके ये सारा काम किया, तो दोबारा अल्लाह ताला अपने ताल्लुक की तरफ ले जा रहा है और फिर तलाक की तरफ लेके जाएगा। ये दिल में रखें, ऊपर तलाक की बात हो रही है, फजल की बात हो रही है, तकवे की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला कह रहा है जी कहाँ अभी आप ले आए, उसके आगे चले ना। यहाँ पे सर आयत कैसर नंबर भाई? 238 में 238 आयत। कैसर भाई हाफिज़ू आगे करें अस्सलावात व सलातुल वुस्ता। और आगे करें और आगे जी। अच्छा, अब ये 2 आयतें हैं, मैं इसको जरा जल्दी में पढ़ने वाला हूँ। वक्त कितना है? सर 4 मिनट है। 4 मिनट है, तो एक तो आप पढ़ेंगे हमारे साथ। अल्लाह ताला नमाजों की हिफाजत करने का हुक्म दे रहा है और खास तौर पे सलातुल वुस्ता, दरमियानी नमाज। बहुत सारे फुज़ला ने, मुहक्किकीन ने ये कहा कि ये नमाजें कौन सी है? असर असर, वरना आपकी हर नमाज सलाते वुस्ता है। 5 नमाजें, हर नमाज ही सलाते वुस्ता बन जाती है, लेकिन चूंकि जो मुफस्सिरीन है उन्होंने असर की नमाज को हदीस की रोशनी में किया है, हम उसको वही रखेंगे। तो हाफिजू अमर है, हाफिजू अलस सलावाती जी, और नमाजों की हिफाजत हिफाजत करो की हिफाजत अपनी करो। नमाजों की। और हिफाजत करो अपनी नमाजों की जी। और हैरानी वाली आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि सलावात का लफ्ज पूरे कुरान मजीद के अंदर 5 मरतबा आया है। सलावात का लफ्ज कितनी दफा आया है? 5 मरतबा जी, 5 मरतबा। सलात जो है वो इससे ज्यादा मरतबा आया है, 95 या 85 को मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सलावात 5 मरतबा है और 5 नमाजें ही फर्ज हैं। तो हाफिजू अला सलावाती, और अपनी नमाजों की हिफाजत करो। करो अपनी नमाजों की। अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बल्कि ये अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता जी, और दरमियानी दरमियानी नमाज, नमाज वुस्ता, खास तौर पर नमाज और वुस्ता, और खास तौर पर, चलो जी लगा लो, और खास तौर पर दरमियानी नमाज की नमाज की। वक़ूमू लिल्लाही क़ानितीन, अब क़ानितीन नया लफ्ज है, फर्मा बरदार होकर, आजिज होकर अल्लाह ताला के सामने खड़े होना, उसको क़ानित कहते हैं। क़ानितीन पहले पढ़ा हुआ है हमने। और खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ लिल्लाही, खड़े हो जाओ, किसके लिए? अल्लाह के आम लिए। ना हम लफ्ज वक़ूमू लिल्लाही, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह के ये लिए है, खड़े हो। और अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, क़ानितीन फर्मा बरदार बनकर। होकर जी। हो गया जी? जी 1 मिनट रह गया सर। जी 1 मिनट रह गया है, तो मैं अगला कर देता हूँ। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि फाइन खिफ्तुम, अगर नमाज पढ़ने के अंदर तो किसी खौफ की हालत में हो, जंग है या कोई और खौफ है, तो नमाज मुआफ नहीं। फरिजालन, तो चलते हुए, और रुकबानन, या सवारी पर बैठकर नमाज अदा करो। फइज़ा अमिनतुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फज़कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो, कमा अल्लमकुम, जैसा कि उसने सिखाया तुमको, मा लम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। यहाँ तक है नमाज का जिक्र दरमियान में, और आगे पीछे है तलाक देने का तरीका या तलाक वालों की आयात। ठीक है जी? जी ठीक अब है। क्या करना है? कल का चलते टाइम हुए नमाज 9 बजे कर रखेंगे टाइम से। सर कल मशवरा यही करके टाइम? फिर सर यही टाइम कल करते हैं, कल फिर मशवरा करके तो फिर 9 बजे कर लेंगे इंशाल्लाह। कल अभी तो टाइम वैसे ही सही है, खत्म होने और वाला है। 9 बजे कल करें।